بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی چکی میں پھنسی عوام کے لیے خوشخبری۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی۔ صنعتی صارفین کے لیے بھی ریلیف، بجلی 7 روپے 59 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی قیمتوں میں بڑی کمی کی خوشخبری سنا دی۔ بجلی فی یونٹ قیمت 7 روپے 59 پیسے کم کر دی۔ اب سے گھریلو صارفین کو 34 روپے 37 پیسے، صنعتوں کو 40 روپے 60 پیسے فی یونٹ بجلی ملے گی۔ وزیر اعظم نے قوم سے خطاب میں کہا، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی، پالیسی ریٹ 12% ہے۔ مزید 7 روپے 41 پیسے فی یونٹ کمی ہم اس کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ تمام صارفین کو اب بجلی اوسطاً 34 روپے 37 فی یونٹ فراہم کی جائے گی۔ لاہور چیمبر کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کا خیر مقدم کیا گیا۔ صدر میاں ابوذر شاد نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کاروباری طبقے کے لیے خوش آئند فیصلہ ہے۔ نائب صدر شاہد نذیر چودھری کہتے ہیں، وزیر اعظم کے فیصلے سے برآمدات اور پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے ابھی 7.5 روپے پر یونٹ کے حساب سے بجلی کم کی ہے، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ جو مہنگائی ہے اس میں کمی واقع ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹری ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی۔ چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن عبد الباسط نے کہا کہ حکومت کے کاروبار دوست اقدامات معیشت کی بحالی کے لیے اہم ہیں۔ اب بہت ساری ہماری انڈسٹری جو ہے وہ جو کہ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، جو لوکلی کنزیومر پروڈکٹس کو پروڈیوس کر رہی ہے، ان سب کے لیے ایک بہت بڑا موقع بن گیا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس جو ہے ان کو کمپیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان پر عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں نے ریلیف عوام تک پہنچانے کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ بجلی کا ریٹ اور مزید کم کیا جائے تاکہ ہمارے جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کا جو روزمرہ کے جو خرچے ہیں ان میں بھی کمی کی جائے، اور بجلی کا جو بل ہے وہ کم سے کم آئے تو ان کی ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔ گرمیاں وغیرہ آ رہی ہیں، اس میں زیادہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اور تھوڑا سا کم کر دیں، غریب آدمی جو اچھی طرح روٹی وغیرہ اپنے کما کھا سکے۔ بلوں کا خرچ بہت ہوتا ہے۔ انہوں نے جو سٹارٹ کیا یہ اقدام اچھا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیں چاہیے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی مشکل ہے جو اتنا بھی پے کیا جا رہا ہے۔ ریلیف عوام تک پہنچانے کے لیے وزیر اعظم کو مزید مؤثر اقدامات کرنا ہوں گے۔ کیمرامین ملک ٹیپو آوان کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں کمی کے اعلان کے بعد نیا ٹیرف کیا ہوگا، بجلی کے نئے نرخ کیا ہوں گے، تفصیلات سامنے آ گئی۔ حکومت نے بجلی سستی کرنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا ٹیرف 6 روپے 14 پیسے کمی سے 8 روپے 52 پیسے ہو جائے گا۔ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 11 روپے 51 پیسے فی یونٹ مقرر کیے گئے۔ 300 یونٹ استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے ٹیرف 7 روپے 24 پیسے کمی سے 34 روپے 3 پیسے فی یونٹ مقرر۔ 300 سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی کے نرخ 48 روپے 40 پیسے فی یونٹ مقرر ہوئے ہیں۔ صنعتوں کے لیے بجلی کے یونٹ 40 روپے 51 پیسے فی یونٹ، زرعی صارفین کے لیے بجلی کا ٹیرف 34 روپے 58 پیسے فی یونٹ مقرر کیا گیا۔ بجلی کا اوسط ٹیرف 7 روپے 41 پیسے کمی سے 37 روپے 64 پیسے ہوگا۔ واضح رہے، ماہانہ 100 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی نہیں کی گئی۔ شہر میں مہنگائی مافیا کا راج برقرار، سرکاری ریٹ لسٹیں نظر انداز، سبزی، پھل، چکن سمیت سب کچھ ہی مہنگے داموں فروخت۔ ضلعی انتظامیہ شہریوں کو خود ساختہ مہنگائی سے نجات دلانے میں ناکام ہو گئے۔ ضلع انتظامیہ عید کے بعد بھی جاگ نہ سکے، گراں فروشوں نے لاہوریوں کو جی بھر کر لوٹا۔ چکن کا گوشت سرکاری ریٹ 595 کی بجائے 730 سے 770 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شہر کو گراں فروشوں نے اپنے نرغے میں لے رکھا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سرکاری ریٹ لسٹ 595 صرف کاغذوں تک محدود ہے۔ زندہ برائلر سرکاری قیمت 411 کی بجائے 470 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول سے باہر، اوپن مارکیٹ اور سرکاری قیمتوں میں فرق برقرار ہے۔ آلو درجہ سرکاری نرخ 50 روپے مقرر ہے، بازار میں 60 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ پیاز درجہ سرکاری نرخ 45 روپے، بازار میں 50۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 55 روپے لیکن اوپن مارکیٹ میں 70 میں فروخت ہو رہا ہے۔ ادرک تھائی لینڈ سرکاری نرخ 425 روپے، بازار 480۔ لہسن سرکاری نرخ 590 روپے، بازار 620 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ لیمو چائنا کی سرکاری قیمت 110، اوپن مارکیٹ میں 160 میں فروخت ہو رہا ہے۔ کیلا درجہ سرکاری دام 260، بازار
390 में फरोख्त होने लगा। सेब सफेद अव्वल सरकारी कीमत 325 रुपए, बाजार में 350। अमरूद की सरकारी कीमत 210, बाजार में 250 में फरोख्त होने लगा। स्ट्रॉबेरी की सरकारी कीमत 110 ओपन मार्केट में 150 में फरोख्त हो रही है। अशिया खुरनोश की खुद साख्ता बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान हैं। ईद अपने प्यारों के साथ गुजारने के बाद परदेसियों की लाहौर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर लाहौर आने जाने वाले मुसाफिरों का रश लग गया। जहां ज़ाती सवारियां, बसें और दूसरे ज़राए आमदोरफ्त हैं, ट्रेन की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईद मनाने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों ने लाहौर से आबाई घर का रुख किया। कुछ ईद के लिए लाहौर भी आए। रेलवे स्टेशन समेत बस अड्डे और दीगर जगहों पर भी शहरियों की वापसी शुरू हो गई। शहरियों का कहना था कि ईद के लिए आबाई घर गए थे, वापसी के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया। ट्रेन का सफर इंतहाई मुनासिब और आरामदेह होता है। ट्रेन का जो सफर है ना, स्पेशली जो ज़ईफ़ लोग होते हैं उनके लिए बड़ा कंफर्टेबल होता है। एक तो ये बात है, इस महंगाई के दौर में आप जो भी अड्डे पे जाएंगे, फैसल मूवर पे, स्काई वे पे जाएंगे, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, उनके फेयर ज़्यादा है। ट्रेन का सफ़र बड़ा कंफर्टेबल है और इस महंगाई के दौर में ये सफ़र मुनासिब भी पड़ता है। चंद शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की नाअहली की वजह से ट्रेनों का इतना बुरा हाल है कि मजबूरी में भी इसका सफर दोबारा ना करें। टिकट की प्राइसेस इट्स वेरी आउटरेजियस और फैसिलिटीज आई वुड से इट्स टोटली ज़ीरो। पसंद करता हूँ खैर ट्रेन के सफ़र को, लेकिन इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि हम दोबारा कभी ट्रेन में सफ़र करेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा इस बार। खैर ईद के मौके पर रेलवे इंतजामिया की जानिब से खुसूसी ट्रेन चलाई जाती हैं और मुसाफिरों को रिलीफ भी दिया जाता है। कैमरामैन जाफिर के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। तौहीद पार्क रोड से मुल्हिका हसन चौक इंतजामी गफलत का शिकार। मेन रोड पर घड़े पड़ने से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात। मजीद जानेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाम नगर रोड हसन चौक पे। अगर बात कर ली जाए इस सड़क की, तो इस सड़क जो है वो एक अरसे से इंतजामी गफलत का शिकार है, जिसके सबब यहाँ पे अहले इलाका और राहगीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उनसे इस सड़क के हवाले से जो मसाइल हैं वो उनसे पूछते हैं कि उनको किस कदर मसाइल हैं। सर मुझे बताइएगा क्या क्या मसाइल दरपेश और कितने अरसे से? ये 6 साल तो रोड टुटा है, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ सड़क ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सड़क कितनी खराब है? सड़क सर बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो कितने मसाइल? ये रोज़ाना एक्सीडेंट ही होते हैं इधर, पानी की तंगी है इधर। आपकी अपील पहुंची है। सर आप क्या कहेंगे सड़क के बारे में? हम सर यही है कि सारा कारोबार हमारा ख़राब हुआ हुआ है। अब ये हम 5-6 साल से ये रोड देखा है, अब यहाँ से शुरू हो गया हमारा तो आना जाना बड़ा मुश्किल है। कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। हमारी यही अपील है कोई सुनी जाए हमारी भी। काफ़ी अरसे से ये हमारा कारोबार का बहुत बेड़ा गर्क है, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं है। अब ये यही अपील है इंतज़ामिया से कि मसाइल हल हो गए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि सारे अहले इलाका अवाम यही इंतज़ामिया से अपील करती नज़र आती है कि यहाँ पर सड़क जो है उसकी हालत एक अरसे से ख़राब है। 6 साल से सड़क की ख़राब हालत है। गुजरते हैं तो मसला होता है, रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, बारिश हो तो कहीं के दिन पानी जमा रहता है। इससे उनका इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इस सड़क को बनवाया जाए ताकि जितने भी यहाँ पर अहले इलाका को मसाइल दरपेश। ठीक है इब्राहिम, आपका बहुत शुक्रिया। माल रोड की बिल्डिंग्स की बैरूनी हिस्से की तारीखी हैसियत की बहाली का मंसूबा वॉल सिटी अथॉरिटी ने नया प्लान भेजकर 4 अरब रुपए मांग लिए हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी ने माल रोड की तारीखी हैसियत की बहाली का नया प्लान भेज दिया। प्लान के मुताबिक अकबरी मंडी, वजीर खान बारादरी की तारीखी हैसियत बहाल की जाएगी। NC8 जैन मंदिर, म्यूजियम, नीला गुम्बद, पाक टी हाउस, पंजाब यूनिवर्सिटी, GC यूनिवर्सिटी और नासिर बाग की बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा भी बहाल किया जाएगा। माल रोड पर बिजली की तारें अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी। वॉल सिटी अथॉरिटी ने इस नए प्लान के लिए 4 अरब रुपए मांग लिए हैं। अफसरशाही ने हेल्थ इंडिकेटर्स की बुनियादी जिम्मेदारी से हाथ उठा लिए। PHU के बाद माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम भी ठेके पर देने का फैसला। महकमे सेहत ने प्राइवेट फर्म से पेशकश तलब कर ली। प्राइवेट फर्म दौरान ज़चगी माँ और बच्चा की शरह अमवात समेत हेल्थ इंडिकेटर्स की जिम्मेदार होगी। बुनियादी मराकज़ सेहत के बाद माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम भी ठेके पर देने का अमल शुरू कर दिया गया। सेहत आमा में बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम मरहलावार ठेके पर दिया जाएगा। IRMNCH प्रोग्राम को मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का नाम दिया गया है।
प्राइवेट फर्म्स 21 अप्रैल तक माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ठेके पर लेने के लिए बोली दे सकेंगी। एंटीनेटल केयर, हिफाजती टीके लगाने समेत सेहत आमा के तमाम अमूर भी प्राइवेट फर्म के रहमो करम पर होंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स की जगह मरहलावार कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स लेंगे। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम को ठेके पर लेने वाली प्राइवेट फर्म ही कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को दिहाड़ी पर रखेगी। पहले मरहले में 9,500 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स भर्ती होंगे। लाहौर डिवीजन में 4,000 से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर दिहाड़ी पर रखे जाएंगे। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बौखलाहट, टीचिंग अस्पतालों के एमएस के लिए इंटरव्यू से पहले सिलेक्शन कमेटी में रद्दबदल, मुस्तकिल एमएस तयनात करने के लिए सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर कियानी को भी शामिल कर लिया गया। टीचिंग अस्पतालों के मुस्तकिल एमएस तैनात करने के लिए एक माह कबल सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी गई। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सिलेक्ट कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, सीईओ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, वीसी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर जाहिद परवेज को सिलेक्ट कमेटी का रुकन नामजद किया गया। लाहौर समेत सूबे भर के 35 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस तैनात करने के लिए 25 मार्च तक दरखास्तें वसूल की गयी। इंटरव्यूज का मलरा शुरू करने से पहले सिलेक्ट कमेटी में तब्दीली कर दी गई। सिलेक्ट कमेटी में मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर अजहर कियानी को भी शामिल कर लिया गया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 8 एसपीज और 21 डीएसपीज के करोड़ तबादले कर दिए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एसपी कैंट ऑपरेशन शफीक को सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया। एसपी सिटी काजी अली रजा एसपी कैंट मोहम्मद बिलाल एसपी सिटी ऑपरेशन और इसरार अली एसपी ऑपरेशन इकबाल टाउन तैनात कर दिए गए। मोहम्मद उमर को एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन क्लोज कर दिया। शफकत रशीद को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट तैनात कर दिया गया। नासिर महमूद खालिद को डीएसपी इन्वेस्टिगेशन टाउनशिप, मोहम्मद अफसर डीएसपी एमटी वर्कशॉप पंजाब लाहौर लगा दिया गया। जमील अहमद साजिद को डीएसपी ऑपरेशन पीएसपी लाहौर तैनात कर दिया गया। आईजी पंजाब ने 117 अफसरान के करोड़ तबादले कर दिए। शफकत अली डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम इकबाल टाउन तैनात, सगीर अहमद मिर्जा डीएसपी एस्टेब्लिशमेंट एसपीयू लाहौर तैनात, जफर इकबाल डीएसपी वीवीआईपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात, गुलाम दस्तगीर को डीएसपी बरकी से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, नसरुल्लाह खान चट्ठा को डीएसपी सीआरओ लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद कमर साजिद डीएसपी एवीएलएस इकबाल टाउन तैनात, कमर अब्बास डीएसपी इन्वेस्टिगेशन गुलबर्ग लाहौर तैनात, मोहम्मद एजाज को डीएसपी गुलबर्ग से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, आसिफ रशीद मलिक डीएसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन तैनात, अली अकबर को डीएसपी पीएचपी लाहौर तैनात कर दिया गया। खालिद महमूद डीएसपी 6 एसपीयू लाहौर पंजाब तैनात, बाबर अशरफ को डीएसपी ऑपरेशन शफीकाबाद तैनात कर दिया गया है। अरशद हयात को डीएसपी शफीकाबाद से सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म, सैयद हुसैन हैदर एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम काहना लाहौर तैनात, वहीद अख्तर को डीएसपी 5 एसपीयू लाहौर तैनात कर दिया गया है। आसिफ जमान को डीएसपी 1 एसपीयू लाहौर तैनात किया गया। जफर इकबाल डीएसपी सिक्योरिटी 2 सिविल सेक्रेटरीट लाहौर तैनात, रजाकार हुसैन को डीएसपी 3 एसपीयू लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद जहीर बाबर को डीएसपी सेफ सिटीज़ लाहौर तैनात कर दिया गया है। अनिल अनवर डीएसपी ऑपरेशंस 2 पीएचपी हेडक्वार्टर लाहौर तैनात, आमिर इकबाल को डीएसपी इंक्वायरी लाहौर रेगुलर तैनाती दे दी गई है। पंजाब में सहूलत आमदी गो बाजार कायम करने का फैसला, वज़ीर आला मरियम नवाज ने बाजार प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर में 14 मुकामात पर सहूलत आमदी गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत ख़ुसूसी इजलास में सहूलत ऑन दी गो के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने लाहौर में 14 मुकामात पर सहूलत ऑन दी गो बाजार पायलट प्रोजेक्ट के लिए प्लान तलब कर लिया। बाजार के लिए रोड के अतराफ में सरकारी अराज़ी इस्तेमाल में लाई जाएगी। लाहौर में सहूलत ऑन दी गो पायलट प्रोजेक्ट के तहत 816 स्टॉल बनाए जाएंगे। इजलास में बताया गया कि सहूलत ऑन दी गो बाजार मुल्तान रोड, हंजरवाल, मांगा मंडी, रायवंड, G1 मार्केट, फैसल टाउन, मोर मार्केट और बेदिया रोड पर कायम होंगे। ई मिलत रोड, गुलशन रावी, शाहदरा, शादमान और सिंहपुरा में भी शामिल हुए हैं। वज़ीर आला को पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोखर ने मॉडल बाजार पर रिपोर्ट पेश की। ईद की छुट्टियों के दौरान आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। सोना $40 बढ़कर $3,123 फी औंस हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में इजाफे के तासुरात लाहौर के मुकामी सराफा बाजारों में भी देखे गए। सोना 7,000 रुपए रिकॉर्ड महंगा हो गया, जिससे खालिश 24 कैरात फी तोला सोना 3,32,800 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोला सोना 3,05,066 रुपए का हो गया। 21 कैरात फी तोला सोना 2,91,200 रुपए तक पहुँच गया।
पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभाल ली। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी ने शिरकत की। एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्चुअल इजलास के फैसले के मुताबिक पाकिस्तान ने एसीसी की सदारत संभाली। पाकिस्तान एशिया में क्रिकेट को फरोग देने के लिए मिशन के साथ काउंसिल की क़यादत करेगा। पाकिस्तान को एसीसी की क़यादत मिलने के बाद पहला हदफ एशिया कप का इनेकाद होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के बाद अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी श्रीलंका के शिमी सिल्वा के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सदर मुंतखब हो गए। जुल्फ़कार अली भुट्टो की 46वीं बरसी सीनियर रहनुमा मियां अजीज़ुर रहमान चंद की क़यादत में पीपल्स पार्टी का काफ़िला घड़ी खुदाबख्श के लिए रवाना हो गया। काफ़िला रेलवे स्टेशन से ग्रीन लाइन ट्रेन में रवाना हुआ। काफ़िले में आकिब सरवर, चौधरी नुमान यूसुफ, मलिक मुबशर अवान और मलिक इमरान खोखर, मियां फाजिल, हसन गोंदर, राय उमैर हसन और मलिक रशीद समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने शिरकत की। अजीज़ुर रहमान चंद ने कहा कि मुल्क भर से पीपल्स पार्टी के कारकुनान बरसी में शामिल हो रहे हैं। हर साल की तरह जिंदा दिलाने लाहौर के कारकुन जो हैं वो भुट्टो शहीद की बरसी पे जाते हैं। अब हम सारे दोस्त साथी गड़ी खुदाबख्श जा रहे हैं और वहाँ पे जाके कायदे अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी के मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापे। थिएटर्स के कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स और हॉल्स का जायज़ा लिया। अदाकार साजन अब्बास, अदाकारा नीली, साइमा खान, नायाब खान और सोनू भट्ट को शोकाज नोटिस जारी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने छापों के दौरान नाक़िस सफाई और इंतज़ामी बद इंतज़ामियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। स्टेज ड्रामों में गैर अखलाकी गानों और फनकारों के नामुनासिब लिबास पर भी बरहमी का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात ने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के थिएटर्स में किसी को बेहूदगी और बेहयाई फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मौके पर मारूफ अदाकार साजन अब्बास, अदाकारा नीली, साइमा खान, नायाब खान और सोनू भट्ट को शोकाज नोटिस जारी किए गए। वज़ीर इत्तलात ने वाज़ेह किया कि आइंदा अगर किसी फनकार ने तयशुदा SOPs की खिलाफ वर्जी की तो उस पर ताहियात पाबंदी आयद कर दी जाएगी। स्टेज, टीवी और फिल्म की नामवर अदाकारा अक्सा मलिक का कहना है कि बिला वजह फनकारों को नोटिस जारी ना किए जाएं। ईद उल फितर के मौके पर हर थिएटर में 2-2 शो हो रहे हैं। लाइव परफॉर्मेंस में मार्जिन दिया जाए। मुझे जो नोटिस किया गया है वो बगैर वजह के है। उनसे एग्री करती हूँ। अच्छी बात है कि अब कम से कम काम तो होगा और काम करने वाली लड़कियाँ आगे भी आएंगी, लेकिन चेक करें कि कौन करता है। सिर्फ उनको मॉनिटर किया जाए या उनको नोटिस भेजा जाए। जो नहीं करते कम से कम उनके साथ नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मुझे भी नोटिस आया हुआ है और मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि मैंने किया क्या, क्योंकि जो गाना मैंने सेंसर में उनको दिखाया है एज इट इज़ वही मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया और सब लड़कियों ने यही किया होगा, क्योंकि हम लोगों को गाना कोरियोग्राफर सेट करवाता है, तो जो हम 3-4 दिन रिहर्सल करके उसको सेट करते हैं। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइड टीमों की आमद। थाईलैंड विमेंस क्रिकेट टीम मैच में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। थाईलैंड टीम का 19 रुकनी दस्ता कप्तान नारो एमुल चाइवाई की क़यादत में लाहौर पहुंचा। थाईलैंड विमेंस क्रिकेट टीम आज पाकिस्तानी टीम के साथ वार्म अप मैच से तैयारियों का आगाज़ करेगी। गर्मी की आमद के साथ साथ शहर का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। गर्मी का एहसास कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और फूल लगाने चाहिए। गर्मियों में कौन से फूल और दरख्त की डिमांड बढ़ जाती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजूद गुल से भी है कायनात में रंग, और जब ये गुल दहकते सूरज, गिरते दर्जा हरारत, झुलसाने वाली धूप में नजरों के सामने हो तो धूप की तपिश और सूरज की गर्मी कम महसूस होने लगती है, जिसके लिए जरूरी है कि मौसम गर्मा में बागबानी जैसे बेहतरीन मशगला से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज हुआ जाए। गर्मियों की मुनासबत से गुलचीन, कनीर, छुई मुई, दोपहरी, कास, मास, रात की रानी समेत दीगर फूल पौधे शामिल हैं। बहुत से ऐसे दरख्त हैं जो आपको ठंडक देते हैं। जिसी तरह फूल हैं, ये जैसे बहार देते हैं, पटोनिया है, पटोनिया डेलिया है, तो इसी तरह मैरीगोल्ड भी होता है, ये अंट्रेमन है जो हमने पार्क में लगाई हुई है। तो इस तरह ये आपको माहौल भी अच्छा देती हैं और फूल भी होते हैं और लोग देख के खुश भी होते हैं। शहरियों का कहना है कि पौधे हमें ताज़ा ऑक्सीजन ही नहीं फराहम करते, हमारी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें इन्हीं पौधों और दरख्तों के जरिए हासिल होती हैं। एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पोल्यूशन है ट्रैफिक की वजह से, उसके लिए हमें पौधे लगाने चाहिए। बजाते खुद हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए, खुद यानी कि बजाय ये कि हम गवर्नमेंट से कहें कि भाई पौधे लगाए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पौधे लगाएं। दरख्त लगाने चाहिए ताकि वो गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं और हमारा ग्रीन ज़्यादा अच्छा लगता है। शजरकारी का या प्लांट्स वगैरह का इनकार करना चाहिए, ये मुहिम चलानी चाहिए
हमें आने वाली जनरेशन को भी और जो हमारे जो मौजूदा हैं इनको भी ये करनी चाहिए। गर्मियों में दरख्तों की ठंडी छांव माँ की आगोश की तरह हमें सुकून पहुंचाती है, इसीलिए इनकी हिफाजत कीजिए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। लाहौरियों की नॉन स्टॉप आउटिंग जारी, शहरियों की बड़ी तादाद लिबर्टी चौक में पिकनिक मनाने लगी। मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। ईद ख़त्म हो चुकी है, ईद की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन जो लाहौरिये हैं उनकी जो आउटिंग है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। जो लाहौरिये हैं उन्होंने बाहर का रुख किया है। फैमिलीज़ की बहुत बड़ी तादाद है जो कि अवामी जो तफरीगाहें हैं उनका रुख कर रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी के मुकाम पर, और लिबर्टी राउंड अबाउट के मुकाम के ऊपर शहरियों की बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने बाहर का रुख किया है। ख़ास तौर पर बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं जो यहाँ पर आकर महसूस हो रहे हैं, चूँकि यहाँ पर PHA की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त जो फ्लावरिंग है वो की गई है। इसके साथ लाइटिंग का बड़ा ज़बरदस्त इंतजाम किया गया है। इसके साथ साथ जो PSL की नया एडिशन जो आने वाला है उसके हवाले से जो PCB है या उनकी जानिब से बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मुख्तलिफ जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनकी जानिब से यहाँ पर एहतमाम किया गया है लाइटिंग वगैरह का, और फैमिलीज़ बड़ी तादाद में बाहर निकल रही हैं, वहाँ पर जाकर महसूस हो रही हैं, और मुख्तलिफ जो यहाँ पर लाइटिंग की गई है उससे महसूस हुआ जा रहा है। फ्लावरिंग का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद मलिक से कि वो दिखाएं किस तरह से यहाँ पर फ्लावरिंग की गई है या फिर लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है, और फैमिलीज़ वो किस तरह से बाहर गए हुए हैं और वहाँ पर जाकर एंजॉय कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की भी हम कोशिश करेंगे। बच्चे, मुझे बताइएगा आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है और किस तरह से यहाँ पर लिबर्टी में आप महसूस हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से आई हूँ, दरवेश कोट से। बैरिया टाउन के अंदर जो दरवेश कोट है मैं वहाँ से आई हूँ, और ये काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हम पहली दफ़ा आए हैं और बहुत ही अच्छी लगी है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। मैम, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, हम लोग फैसलाबाद से आए, इधर कल आए थे, इधर सिस्टर क्या रुकेंगे, फर्स्ट टाइम इधर आए, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत खुश हुए हम इधर आके। लाहौर इंतज़ामिया जो ज़िले इंतज़ामिया जो इंतज़ामात किए हैं या फिर... ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया। ईद की छुट्टियां ख़त्म, लेकिन लाहौरियों के सैर सपाटे ना हुए ख़त्म। लाहौरियों का फूड पॉइंट्स पर रश, मज़ीद जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। ईद तो ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जो लाहौरी हैं उनके सैर सपाटे ख़त्म नहीं हुए। और जब बात आए लाहौरियों की तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वहाँ पर ख्वाबों की बात ना हो। और मैं गुलशन अभी में मौजूद हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखें तो किस तरह से जो है वो लाइन वाइज मटन की, तुम्बे की जो है वो डिशेस तैयार की जा रही हैं। और ये सामने लाइव जो है वो बकरा जो है वो काट कर अपनी मर्ज़ी का गोश्त यहाँ से पसंद किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे इसकी पकाई होती है, और फिर लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर लोगों का जमे का फिर भी अगर आप देखें तो ऐसा महसूस होता है कि आज भी जैसे ईद का समा है। लेकिन लाहौरी जो हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात है कि ईद अभी ख़त्म भी हो गई है, लोगों के सैर सपाटे ख़त्म नहीं हुए और खानों का सिलसिला जो है वो बड़ा जारी है? यही देख सकते हैं आप, ईद का चौथा रोज़ है, ईद ख़त्म भी हो गया, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पर रश वैसे ही लगा है ईद जैसा। यकीनन जी, लाहौरियों का खानों के साथ और अच्छा खाना देने वालों के साथ भी प्यार होता है। ये कुछ लोग हमारे साथ बैठे हुए, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम। ईद जो है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन लाहौरी जो है वो कहते हैं खाबे के शौकीन है, और खाना उनका ख़त्म नहीं होता है। वो होना भी नहीं है, सारी उम्र नहीं होना। क्या वजह है इसकी? लाहौरी एक ही चीज़ है बस, लाहौर पहचान ही यही है, खाने की, खाना पीना ही हमारा बस। लाहौरियों की पहचान जो है वो खाने की है। ये सर जी हैं मसरूफ़ हुए हुए खाने में, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या कहेंगे आप, ईद का चौथा दिन है और अभी भी वैसे ही लाहौरी जो है वो देखने में नज़र आ रही है? लाहौरी जिंदा दिल है, जिंदा दिल है, बस वो कहते हैं खाते पीते रहे और दिल को सोते रहे, काम कोई नहीं है उनको। अच्छा, खाते पीते रहे और दिन को सोते रहे। और यकीनन ये लाहौरियों की जो है वो रौनक भी है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग बैठे अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे आप लाहौरियों के हवाले से? ईद का चौथा दिन है और अभी भी रश जो है वो उसी तरह से है। देखें जी, खाना जो है वो ज़ौक़ से है, ठीक है, और ये इलियास दुम्बे का तो खाना ही इनका बहुत अच्छा बनता है। ठीक है तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर का चौथा रोज़ थिएटर जामों पर शायकीन का बेपनाह रश। नाज थिएटर मिशन रोड को अदाकार ज़फ़री खान ने ठेके पर ले लिया। ज़फ़री खान ईद उल फितर पर ज़ेर नुमाइश ड्रामे चलो ईद मनाए में परफॉर्म भी कर रहे हैं। कहते हैं कि हुकूमत पंजाब के नए SOPs पर खुश हूँ, हमें खुद को ठीक करना है। ड्रामे की बकिया कास्ट में अदाकार आसिफ खान, रिजी खान, अरशद मलिक, अक्सा मलिक, सोनिया चौधरी, जबकि नाइजा खान समेत दीगर फनकार भी शामिल हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।